Welcome to Chemistry Academy, Fajanda High School and Junior College, Wahur. Dear student, myself Sayyid Tanzil sir, and today we are going to discuss our new topic polymer, introduction to polymer chemistry. And in case of introduction to polymer chemistry, in previous video lecture already we have discussed classification of polymer. What is polymer and how polymers are classified, different ways by which polymers are classified, all that points we have studied in last video lecture. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सब ये डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट कवर किया है. आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विथ इट्स सिंथेसिस. कौन से पॉलीमर अपन स्टडी करेंगे? एडिशन पॉलीमर्स, हाउ इट इज फॉर्म, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, एंड सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स. one is called as chain growth polymers and second one is known as step growth polymers. Okay, so student, let's start our today's video lecture depend upon addition and condensation polymer. Now before going to start, what is condensation polymer and what are the examples of condensation polymers? Once again let me revise the definition of polymer. मैं यहाँ से मेरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि what is polymer. यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे. अब एक्चुअली पॉलीमर इट इज डिराइव्ड और ओरिजिनेट्स. ये पॉलीमर, ये वर्ड, ये शब्द, ये कहाँ से आया हुआ है? सो पॉलीमर इट इज डिराइव्ड या इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट या पार्ट. मर का मीनिंग क्या रहता है? यूनिट या इट इज कॉल्ड एज part. Polymers it means many unit or we can say many part, many units or we can say many parts. So linkage of मतलब binding of, linkage of many units, many parts constitute the polymers. So how to define the polymers? कैसा अपन डिफाइन करेंगे polymers को? Linking of many units or linking of many parts constitute the polymers. Actually polymers are high molecular weight complexes. What is polymer? Polymers are high molecular weight complexes in which the small units, that is called as monomers, it link together by covalent bond and it form the large chain or longer chain, and that longer chain it is called as polymer, and this formation of polymer, this process is known as polymerization. तो स्टूडेंट, ये आज का अपना टॉपिक है, व्हाट इज पॉलीमर एंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन. नाउ पॉलीमराइजेशन एक्चुअली इट इज अ फेनोमेनन or we can say it is a process in which polymers are formed, a process in which many simple units link together and constitute a polymer. That process is known as polymerization. उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. नाउ बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 types: natural polymer, synthetic polymer, semi-synthetic polymer. अब natural polymer means we can say the polymer which is obtained from natural sources. Polymer which is obtained from natural sources. Some are plant based and some are animal based, like cotton. Cotton, it is a polymer. Now cotton, it is obtained from cotton plant. Jute, Lanin, it is obtained from the plant. So that are the examples of natural polymer but plant based polymer. Now come to the silk, wool. Okay, now silk, it is from silk worm, that is animal. Now wool, it is from goat or we can say it is from sheep, that is animal based fiber. Okay, so based on the sources from which the polymers obtained, it is called as natural polymers.
वैसे कुछ रहते हैं आप लोगों के सिंथेटिक पॉलीमर्स। नाउ सिंथेटिक मीन्स वी कैन से मैन मेड, जो अपन प्रिपेयर करते इन अ लेबोरेटरी, लाइक नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर्स, बुना एस, ऑल आर द synthetic polymers, the polymer which is obtained from which is prepared in laboratory. Man-made polymers are called as a synthetic polymer. उसके बाद में आपका आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक्चुअली सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नेचुरल पॉलीमर्स, लेकिन उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या रहते हैं आप लोगों के? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नेचुरल पॉलीमर्स, उसमें कुछ लेबोरेटरी में मॉडिफिकेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी सिंथेटिक. इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल polymer which is modified in a laboratory, that is called as your semi synthetic polymer. in detail अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया है. नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कैसा पॉलीमर बन रहा है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है. On that basis, polymerization are of polymers are of two types. One is your addition polymer and second one is your condensation polymer and third one is your ring opening polymer. देखो, based on mode of polymerization कितने types के polymer है आप लोगों के पास में? One is your addition polymer, second one is your condensation polymer and third one is your ring opening polymer. थर्ड पार्ट क्या है आप लोगों का? रिंग ओपनिंग पॉलीमर. नाउ दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये तीन के सिंथेसिस स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स. मैं आपको आज भी बताऊंगा, ये वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एडिशन पॉलीमर्स या व्हाट इज एडिशन पॉलीमर एंड हाउ एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर. व्हाट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमर. ये सब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. नाउ लेट्स मी स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट एडिशन पॉलीमर. See here, try to remember the difference between addition and condensation. See, my part is addition polymers. Now, addition polymers means we can say the polymers which is obtained. Generally, addition polymer it is observed in alkene. क्या अपन एडिशन कर रहे हैं ना, कहाँ रहता है एडिशन पॉलीमर? ऑब्जर्व इन अल्किन. अब व्हाट इज एडिशन पॉलीमर? मैं किसको बोलूंगा एडिशन पॉलीमर? द पॉलीमर इन विच रिपीटिंग यूनिट्स, the polymer in which repeating units. now repeating units इसका मतलब रहता है मोनोमर. रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या रहता है? मोनोमर. नाउ मर मीन्स पार्ट एंड मोनो मीन्स वन. सिंगल यूनिट, सिंगल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द मोनोमर. और वही मोनोमर को अपन क्या बोलेंगे? रिपीटिंग यूनिट्स. तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि द मोनोमर्स या रिपीटिंग यूनिट्स एडेड टुगेदर एंड देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी ग्रुप्स. दो मोनोमर, सेम मोनोमर को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उसमें कोई भी ग्रुप एलिमिनेट होगा क्या? नहीं. नो रिमूवल ऑफ वाटर, नो रिमूवल ऑफ अमोनिया, नो रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर. एग्जैक्टली अपोजिट आता है इसका कंडेंसेशन पॉलीमर. किसको बोलेंगे अपन कंडेंसेशन पॉलीमर? द पॉलीमर इन विच टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर. Two or more different monomers are joined together, condensed together with evolution of small molecule. जैसे दो मोनोमर्स एक दूसरे से कंडेंस्ड होंगे, रिएक्ट करेंगे, उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर कंडेंसेशन पॉलीमर. वो पॉलीमर को अपन कौन सा बोलेंगे? कंडेंसेशन. रिंग ओपनिंग में बाद में बताता हूं. तो मुझे एक बात बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर? एडिशन पॉलीमर में क्या होगा? देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी स्मॉल ग्रुप.
पॉलीमर बन जाएगा. In case of condensation polymer, when monomers are condensed together, joined together, there is an elimination of a small molecule like water, HCl, ammonia, and that product, that polymer is called as condensation polymer. Now we are going to start the example of addition polymer, and in case of addition polymer, our first example, that is formation of पॉलीथीन. देखो इधर ना, पहला पॉलीथीन बैग्स सबको पता है. आप लोग जाते हैं कि नहीं मार्केट में सब्जी लाने, वेजिटेबल्स लाने जाते हैं कि नहीं, ब्रेड्स वगैरह लाने जाते हैं कि नहीं. आप लोग जो आपको कैरी बैग देता है, आपको ट्रांसपेरेंट कैरी बैग देता है, ट्रांसपेरेंट. कभी आप कोई बड़े शोरूम में चले जाओ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, वहां आपको जो कैरी बैग देता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, थोड़ा हैवी रहता है. नाउ वो दोनों पॉइंट्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगा. नाउ पॉलीथीन, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीइथाइलिन. पॉलीथीन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीइथाइलिन. अब देखो पॉलीथीन, it is the example of addition polymer. And now in case of polythene, the monomer use is, अब अगर मैं polythene देखूंगा तो इसमें monomer, जिसको मैं repeating units बोलता हूं, monomer को अपन क्या बोलेंगे, repeating unit. The monomer used is ethene. Which monomer is used? Ethene, that is CH2 double bond CH2. Now this is called as a ethene. कौन सा monomer use करूंगा मैं? Ethene. When a large number of ethene molecules, अब large number 100, 200, 500, उसको मैं लिखूंगा N. क्या लिखें आप उसके यहां पर? N. This small n indicates large number of ethene molecules. So that is here CH2 double bond CH2. Okay, large number of ethene molecule added together and it form a long chain, and that long chain it is called as a polythene, or it is called as polyethylene. But in case of polythene or polyethylene, there are two types or two process to form the polythene. Now one type of polythene is here low density polythene, that is called as LDP. दोनों का मैं यहाँ पर synthesis करूंगा. And second one is here HDP. HDP का मतलब रहता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स, एंड LDP का मतलब क्या रहेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन. अब देखो व्हाट इज हाई डेंसिटी एंड व्हाट इज लो डेंसिटी. अब जितना डेंसिटी लो रहेगा उतना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. जितना डेंसिटी लो रहेगा उतना वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा. अब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री, उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट नहीं रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वॉल्यूम ज्यादा रहा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उतना स्ट्रांगली वो बॉन्ड रहेंगे क्या, नहीं. नाउ लो डेंसिटी पॉलीमर्स आर ट्रांसपेरेंट. जो आप लोग दूध वगैरह मिल्क लाने के लिए जो कैरी बैग यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कैरी बैग, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर लो डेंसिटी पॉलीमर. एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर मतलब दैट इज ट्रांसल्यूसेंट. वो ट्रांस आप लोगों को अंदर बाहर का दिख नहीं सकता है, आप लोगों को अंदर का कुछ दिख नहीं सकता है. दैट इज कॉल्ड एज योर हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी मतलब वहां पर वॉल्यूम कम रहता है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुगेदर. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुगेदर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीमर पॉलीइथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. इनके बनाने के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है. नाउ टू प्रिपेयर लो डेंसिटी पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमर ऑफ पॉलीइथीन. बाय एडिशन पॉलीमर्स ऑफ पॉली मतलब मेनी इथीन मॉलिक्यूल्स लूंगा मैं, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे अपन. क्या करेंगे इसका अपन, पॉलीमराइजेशन एट अबाउट 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो कितना प्रेशर लग रहा है लो डेंसिटी के लिए, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर. कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है यहां पर, 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर in presence of oxygen या in presence of peroxide as a initiator.
to start the reaction some reagent is required that is called as initiator. तो क्या इनिशिएटर के तौर पर क्या यूज कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड, और उसके बाद ये मेनी इथीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा कैरी बैग्स में, दैट इज योर पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन. नाउ स्टूडेंट, हाउ टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन. अब मैं पॉलीथीन का स्ट्रक्चर कैसे शो करूंगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो. सी दिस वन इज योर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. नाउ बोथ साइड शो द वैलेंसी, मेक अ बॉक्स एंड उसके बॉटम में लिख दो N. ये वैलेंसी क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये यूनिट इधर भी है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये यूनिट इधर भी है, एंड दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट्स, और ऐसा कंटिन्यूअस चेंज होते जा रही है, एंड दैट लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. अब इतना लॉन्ग चेन अपन बोर्ड पर नहीं लिख सकते, इसलिए उसको अपन डबल बॉन्ड कन्वर्ट करने का सिंगल बॉन्ड में दोनों तरफ वैलेंसी शो करो कि भाई दिस ग्रुप इज अटैच राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और बॉटम में N लिख दो. दिस यूनिट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ दिस इज योर लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो कैसा प्रिपेयर करेंगे अपन लो डेंसिटी पॉलीथीन, याद रहेगा हाउ टू प्रिपेयर लो डेंसिटी पॉलीथीन. व्हेन एथीन लार्ज नंबर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल अंडरगोस polymerization at about 1000 to 2000 atmospheric pressure and 350 to 570 Kelvin temperature in presence of oxygen या peroxide as a initiator, it convert into polythenes or it convert into polyethylene, and this polythene is called as, ये polythene को मैं कौन सा polythene बोलूंगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन. क्या बोलेंगे अपन इसको, लो डेंसिटी पॉलीथीन. ना हाउ टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलीथीन. अब देखो यहां कितना प्रेशर लग रहा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए कितना प्रेशर लग रहा है, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर. सी हियर कितना प्रेशर लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब मुझे हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है. नाउ माय रिएक्टेंट विल बी सेम, दैट इज नंबर ऑफ ethene molecule CH2 double bond CH2, it undergoes polymerization. अब एक साइंटिस्ट आया था ज़िगलर नैटा. व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट का नेम क्या था, ज़िगलर नैटा. उसने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया था. क्या इंट्रोड्यूस किया था उसने, कैटलिस्ट, एंड दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज, वो कैटलिस्ट को अपन क्या बोलते हैं, ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट. अब व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन को फास्ट कर देता, कम से कम टाइम में रिएक्शन होगा. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. अब अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा है उतनी एनर्जी कम लगती है. दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. यूज कैटलिस्ट विच डिक्रीज द एनर्जी. अब एनर्जी कम लगेंगे, ज्यादा बाय प्रोडक्ट बनता नहीं, ज्यादा वेस्ट होता नहीं है. ओके, व्हाट इज ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा वो. नाउ एक्चुअली ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई एथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं. क्या है ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट, जल्दी नोट डाउन करो, ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट क्या है तुम्हारा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई इथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. अब इसको देखो ऐसा लिखते हैं, विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. हाउ टू राइट ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट, कैसा लिखेंगे अपन ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट को, सी इट इज रिटर्न एज एल्यूमिनियम, उसके बाद में ट्राई मीन्स 3, एथिल मीन्स C2H5, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम, ट्रांजिशन मेटल है विथ एटॉमिक नंबर 22, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मतलब Cl. नाउ दिस titanium tetrachloride triethyl aluminum, this catalyst is called as a Ziegler Natta catalyst, and this catalyst is used to prepare the high density polyethylene. ओके, तो अब देखो इसका इफेक्ट क्या होता है. मेरा लो डेंसिटी पॉलीइथीन कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ था, 350 to 570, एंड प्रेशर कितना लगा था, 1000, 1K to 2K, 1000 एटमॉस्फेयर टू 2000. जैसे इसने ज़िगलर नैटा कैटलिस्ट यूज किया, द प्रेशर रिक्वायर्ड इज
to 7 atmosphere and temperature 330 to 343 Kelvin, and this reaction take place in presence of, क्या यूज करेंगे आप लोग इधर, Ziegler-Natta catalyst. क्या यूज करेंगे, Ziegler-Natta catalyst. योर प्रोडक्ट विल बी, आपका प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगा, नाउ योर प्रोडक्ट विल बी, आपका प्रोडक्ट आएगा बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बॉटम में अपन लिख देंगे N. नाउ बोथ रिएक्शंस आर सेम, low density polyethene and high density polythenes, both reactions are same. सिर्फ difference क्या है, atmospheric 1000 atmosphere to 2000 and temperature 350 to 570 Kelvin. जैसे Ziegler-Natta catalyst आया, उसने रिएक्शन का रेट मतलब टाइम भी उसको ये कर दिया, कम कर दिया, जल्दी रिएक्शन बन गया, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगने लगा, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कम लगने लगा. एंड नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीथीन्स एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर. अब अपने एडिशन पॉलीमर क्या किसको बोले थे कि जनरली एडिशन पॉलीमर ऑब्जर्व्ड इन अल्कीन. देखो अल्कीन है, इट इज ऑब्जर्व इन अल्कीन, अल्कीन है. नो वेस्ट, नो साइड प्रोडक्ट विल फॉर्म. कुछ भी यहां पर एलिमिनेट हो रहा है क्या, वाटर भी मैंने एलिमिनेट नहीं किया, HCl भी एलिमिनेट नहीं किया, अमोनिया भी एलिमिनेट नहीं किया, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर. ये दोनों पॉलीमर्स में ये डिफरेंस है. कंडेंसेशन का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन, रिंग ओपनिंग का नायलॉन 6 एग्जांपल्स आता है. सो ट्राई टू रिमेंबर व्हाट इज एडिशन पॉलीमर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर. अपन ये प्रिपेयर किए पॉलीथीन, पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन, दैट इज योर लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन. मैं और 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके एडिशन पॉलीमर का. तो ये पॉलीथीन उसका एक एग्जाम्पल हो गया. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट फास्ट एकदम. गुड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर. नेक्स्ट और 2 to 3 एग्जाम्पल देखेंगे अपन एडिशन पॉलीमर की. मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं एडिशन पॉलीमर की, दैट इज टेफ्लॉन. देखो क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहां पर, टेफ्लॉन. सेकेंड एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर टेफ्लॉन. अब एक्चुअली टेफ्लॉन का मतलब रहता है या उसका केमिकल नेम है फ्लोरोइथेन. व्हाट इज टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का केमिकल नेम क्या आएगा? व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन? इट इज polytetrafluoroethane. and which monomer is used to form the Teflon? अब रिपीटिंग यूनिट्स या उसको अपन बोलेंगे मोनोमर. टेफ्लॉन बनाने के लिए जो मोनोमर यूज करते हैं, द नेम ऑफ दैट मोनोमर इज टेट्राफ्लोरोइथीन. स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं. विच मोनोमर इज यूज टेफ्लॉन बनाने के लिए? टेट्राफ्लोरोइथीन. एकदम सिंपल रिएक्शन है. विच मोनोमर इज यूज टू फॉर्म द टेफ्लॉन? टेफ्लॉन बनाने के लिए क्या यूज करूंगा मैं मोनोमर? टेट्राफ्लोरोइथीन. नाउ एक्चुअली इथीन इज CH2 double bond CH2. now this molecule is ethene. what we will do here, just 2 hydrogen atom of ethene are replaced by fluorine. 2 hydrogen atoms of ethene are replaced by fluorine. see this 2 fluorine, दिस 2 मतलब 4 फ्लोरीन हो गए. टेट्राफ्लोरो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इथीन. इट इज द मोनोमर यूज टू फॉर्म द टेफ्लॉन. और पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज करते हैं अपन? इथीन मॉलिक्यूल. नाउ स्टार्ट पॉलीमराइजेशन. सी हियर, लार्ज नंबर ऑफ tetrafluoroethene. you can write in this way also. now this is your टेट्राफ्लोरोइथीन. ये क्या हो गया आप लोगों का? टेट्राफ्लोरोइथीन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन. टेट्राफ्लोरोइथीन का मैं यहां क्या कर रहा हूं? पॉलीमराइजेशन करने का इसका स्टार्ट पॉलीमराइजेशन. अब इसका पॉलीमराइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ
पर ऑक्साइड एज अ इनिशिएटर। क्या यूज करूंगा मैं यहां पर? पर ऑक्साइड एज अ इनिशिएटर या ऑक्सीजन यूज करो। इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। नो सब्सटेंस विल एलिमिनेट, वाटर भी एलिमिनेट नहीं होगा, HCl भी एलिमिनेट नहीं होगा। मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। कैसे अपन प्रोडक्ट लिखेंगे? दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन को बॉन्ड शो करके बॉक्स बना देने का। नाउ सी हियर, दिस इज योर CF2 है, CF2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज CF2, ओके, CF2, both side show the bond, okay, and at the bottom write there N. Now this valency, ये जो valency रहती है ये क्या indicate करते हैं कि this group is attached right hand side, this group is attached left hand side and the chain is goes on. Now this is called as टेफ्लॉन और ऑन या टेफ्लॉन, उसी को अपन बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथेन एंड टेट्राफ्लोरोइथेन इज कॉल्ड एज अ टेफ्लॉन. दिस इज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर. नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर. अगर आप लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो इट इज पॉली एक्राइलोनाइट्राइल. देखो उसका थर्ड एग्जांपल क्या आ रहा है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल. अब एक्चुअली पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब क्या रहता है यहां पर? मेनी. एक्राइलोनाइट्राइल ये मोनोमर रहता है. इसमें मोनोमर कौन सा यूज करते हैं अपन? विच मोनोमर इज यूज? द मोनोमर यूज इज एक्राइलोनाइट्राइल. See here, which monomer is used? Acrylonitrile. What is the structure of acrylonitrile? Acrylonitrile is your CH2 double bond CHCN. Now this CH2 double bond CH single bond CN, it is the monomer used in preparation of polyacrylonitrile. एक simple reaction है. Take large number of acrylonitrile, means we will write here N, many. Now CH2 double bond CHCN. Now here peroxide used as a initiator. Initiator कौन स्टार्ट करेगा ये रिएक्शन को? peroxide. It undergoes polymerization and after polymerization it form, क्या बनाएगा ये आप लोगों का? polyacrylonitrile. कैसा रिएक्शन होगा? It will form polyacrylonitrile. How the reaction will, या how product will form? कैसा अपन प्रोडक्ट बनाएंगे? ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट करने का सिंगल बॉन्ड में. सी now CH2 single bond CH2 single bond CH, okay, attached here CN and then at the bottom write there N. क्यों? अब ये साइनाइड है, ये साइनाइड साइड चेन में चले जाएगा बिकॉज एडिशन विल टेक प्लेस अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जब मैं दो मोनोमर यूज करूंगा, सी दिस इज योर वन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये आपका एक एक्राइलोनाइट्राइल है, प्लस दिस वन इज योर सेकेंड एक्राइलोनाइट्राइल. तो अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, साइनाइड से बॉन्ड नहीं बनाएगा, साइनाइड साइड में चले जाएगा. तो आपका प्रोडक्ट कैसा आएगा यहां पर? CH2. नाउ दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड CHCN. हो गया? CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CHCN. नाउ दिस CH अटैच टू CH2. CH attached to CH2, double bond convert into single bond CHCN. Likewise the chain goes on. ऐसी एक लंबी चेन बनेगी. तो साइनाइड कहाँ चले जाएगा? आपका ब्रांचिंग में चले जाएगा. ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, वो स्ट्रक्चर को अपन कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. वन मोर एग्जांपल यू कैन राइट एडिशन पॉलीमराइजेशन का, दैट इज PVC. पॉली जो पाइप्स आते हैं ना, आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को पाइप्स जो आते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. व्हाट इज PVC? polyvinyl chloride. Now for polyvinyl chloride the monomer use is, अब polyvinyl chloride के लिए मैं कौन सा मोनोमर यूज करूंगा? विनाइल क्लोराइड.
सी हियर विच मोनोमर वी विल यूज हियर, कौन सा मोनोमर अपन यूज करेंगे यहाँ पर, विनाइल क्लोराइड. व्हेन लार्ज नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज CH2CHCl. CH2CHCl. Now this is called as vinyl chloride. When large number of vinyl chloride undergoes polymerization, large number of vinyl chloride undergoes polymerization, it forms the product and that product is known as PVC. क्या है इसका प्रोडक्ट? Are you able to write the product of PVC? स्ट्रक्चर क्या है PVC का? यस श्योर. क्या लिखेंगे अपन इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर, बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड CHCl bond at the bottom right there N, and this is called as your PVC, polyvinyl chloride. ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए एडिशन पॉलीमर की. पॉलीथीन्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देन योर टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, मोनोमर यूज करते टेट्राफ्लोरोइथेन. देन यूर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, मोनोमर यूज करते एक्राइलोनाइट्राइल. PVC, मोनोमर यूज करते विनाइल क्लोराइड. ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब क्या के एग्जाम्पल्स है आप लोगों के एडिशन पॉलीमर. एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको एडिशन पॉलीमर की, दैट इज नेचुरल रबर. Now one more example for addition polymer is natural rubber, और उसके बाद अपन कंडेंसेशन पॉलीमर स्टार्ट करेंगे. Now see guys, अगर मैं नेचुरल रबर देखूंगा, व्हाट इज रबर? अब वो रबर इलास्टिक रहता है, सॉफ्ट रहता है, ओके, इट कैन बी स्ट्रेच. ये सब पॉइंट्स अब आप लोगों को पता है. रबर कैन बी स्ट्रेच व्हेन रिलीज, गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ये सब पॉइंट्स आपको पता है, मैं वो पॉइंट्स अभी डिस्कस नहीं करूंगा. नाउ व्हाट इज रबर या व्हाट इज नेचुरल रबर? What is the monomer used for rubber या natural rubber? अब natural rubber के लिए अपन कौन सा देखूंगा या मेरा repeating unit देखूंगा. So in case of rubber, the monomer used is isoprene. कौन सा मोनोमर यूज करते हैं? आइसोप्रीन. एंड आइसोप्रीन का अगर मैं IUPAC नेम देखूंगा, so it is called as 2-methyl 1,3, देखो 2-methyl 1,3-butadiene. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन? अब ये मोनोमर आप लोग यूज करते हैं आइसोप्रीन, वो आइसोप्रीन मोनोमर का IUPAC नेम क्या आएगा? इट इज कॉल्ड एज 2-methyl 1,3-butadiene. नाउ ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड. 4 कार्बन रहेंगे, 2 डबल बॉन्ड रहेगा. एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 को अटैच रहेगा, सेकंड डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 को अटैच रहेगा, एंड 2-methyl मतलब CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl 1,3-butadiene? इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन. सी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है. नाउ इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3, okay, CH3 single bond CH double bond CH2. Now see here, this one is my carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. So it is called as 2-methyl. Agree? 1,3, अब ये अल्कीन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है. सो 2-methyl 1,3-butadiene, एंड दैट 1,3-butadiene इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन इसको? आइसोप्रीन. एंड दिस आइसोप्रीन इज द मोनोमर यूज फॉर नेचुरल रबर. नाउ हियर वी विल यूज लार्ज नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट. क्या यूज करूंगा मैं? लार्ज नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट. इट अंडरगोज polymerization. It undergoes polymerization, okay? It undergoes polymerization to form product, and that product is called as polyisoprene, and polyisoprene it is called as natural rubber. Polyisoprene it is called as a natural rubber. तो आपको पूछता है which is the repeating unit for natural rubber? Isoprene.
Which monomer is used for natural rubber या rubber? Isoprene. What is the name of natural rubber या rubber? It is polyisoprene. अब देखो मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है polyisoprene का. क्या करने का पता है? Now this double bond shift here. Agree? अब double bond shift here means this double bond convert into single bond. This single bond convert into double bond and this double bond convert into single bond. ऐसा ही यूनिट मैं उधर लिखूंगा, ऐसा ही यूनिट मैं इधर लिखूंगा. अब वो बताने की जरूरत नहीं. देखो क्या आएगा मेरा पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, बॉन्ड CH2. वेरी गुड. सी हियर बॉन्ड ओके CH2. एग्री. डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड C, उसको अटैच्ड हो गया CH3. CH3. नाउ दिस सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड. एग्री. CH. अब ये डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड CH2. ओके बॉन्ड और बॉटम में क्या शो करेंगे अपन? एन. एंड नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ. देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड. नाउ दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोप्रीन. ये आइसोप्रीन की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? इसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन है. अब एक्चुअली ये कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर रहता है इसका. कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका? कॉइल्ड शेप. क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरियस चेन आर हेल्ड टुगेदर. Various chain are held together and it form network like structure and that network like structure is called as coiled shape या coiled structure. क्या बोलते हैं उसको? coiled. और उनमें जो force of attraction रहता है that is weak van der Waals force of attraction. कौन सा force of attraction रहता है? weak van der Waals force of attraction. So it is elastomers. इसको अपन elastomer भी बोल सकते हैं. when it is stretch वो लंबेगा, when it is released it get its original position. So these are the examples of, ये सब काय के examples हो गए आप लोगों के addition polymers के. all are the examples of addition polymers. I hope आपको addition polymer समझ में आया होगा. The polymer in which monomers या repeating units are added together, it form a big molecule that is polymer, but no evaluation of any small molecules like water, HCl, ammonia, and that is called as your addition polymer. Now I am going to start condensation polymer. Take a screenshot. इसके पहले के भी आप लोगों ने screenshot लिया हुआ. Take a screenshot. Very good. Now come to the next part of your polymerization. Next part अपन start करेंगे, that is condensation polymer. Guys, now start our next part of polymer, that is your condensation polymerization. Now what is condensation polymer? अब मैं condensation polymer किसको बोलूँगा? एक 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे. रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स का 1 एग्जाम्पल देखेंगे एंड नाउ वी विल स्टॉप आवर वीडियो लेक्चर. कंडेंसेशन पॉलीमर. अब एक्चुअली कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंसेशन प्रोसेस मैं किसको बोलूंगा? अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब स्मॉल मतलब 1 मोनोमर. a process in which monomers are joined together. अब वो joint के लिए word use करते हैं condense together. Monomers are condensed together to form a big complex molecule called as polymer with elimination of small molecules like water, HCl, ammonia, and that process is known as condensation polymer. मतलब जैसे मोनोमर एक दूसरे को अटैच करेंगे उसमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, और ये प्रोसेस को मैं या ये पॉलीमर को मैं कौन से पॉलीमर बोलूंगा? कंडेंसेशन पॉलीमर्स. एंड नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स का बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन. एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड फाइबर. देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं. पॉलीअमाइड पॉलीमर्स या पॉलीअमाइड फाइबर. अब पॉली का मतलब रहता है मेनी. पॉली का मतलब क्या रहता है? मेनी. नाउ अमाइड, अमाइड एक्चुअली इसका मीनिंग रहता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH.
Now this functional group, it is called as amide functional group. Yes, this functional group is called as amide, या यही functional group को अपन बोलते हैं peptide functional group. Which functional group? Peptide. So it is amide functional group or it is peptide functional group. Polyamide मतलब many amide linkage are there and these polyamides are nylon. अब ये जो polyamides रहते ये क्या रहते हैं आप लोगों के? It is a nylon. याद रहेगा polyamide, it is the example of condensation polymer. Terylene, polyester बोलते हैं इसको. Polyester, it is also the example of condensation polymer. मैं वो भी बताऊंगा. First अपन start करेंगे, that is your polyamide. Now polyamides are called as nylon. Polyamides को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? Nylon, because nylon contain amide linkage. नायलॉन में कौन से लिंकेज रहता है? नायलॉन. नाउ इन केस ऑफ नायलॉन आवर एग्जांपल इज नायलॉन 6,6. देखो कौन सा पॉलीमर अपन प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? नायलॉन 6,6. सी हियर व्हिच पॉलीमर वी आर गोइंग टू स्टार्ट? नायलॉन 6,6. अब नायलॉन को नायलॉन 6,6 क्यों बोलते हैं मैं वो भी बताऊंगा. नाउ हियर द मोनोमर यूज आर. अब नायलॉन 6,6 अगर मुझे बनाना है तो नायलॉन 6,6 बनाने के लिए मैं मोनोमर जो यूज करूंगा दैट मोनोमर्स आर एडिपिक एसिड. देखो विच मोनोमर इज यूज्ड. कौन सा मोनोमर यूज करेंगे अपन? एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डायअमाइन. सी हियर which monomer is used? Adipic acid and hexamethylene diamine. These monomers are used to prepare the nylon 6,6. I'm going to start the reaction. See, adipic acid मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड containing 6 कार्बन. उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे और 6 कार्बन रहेंगे. Now see, this one is my adipic acid. C double bond O, single bond OH. Now CH2 4 times, then C double bond O OH. Now this is called as adipic acid. इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? एडिपिक एसिड. OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 times, C डबल बॉन्ड O, OH. एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन. नाउ मैथिलीन मतलब CH2. कितने टाइम्स CH2 आएगा? 6. हेक्सामेथिलीन. डाई मीन्स 2 एंड अमाइन मीन्स NH2. अमाइन का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर? NH2. नाउ दिस इज योर एडिपिक एसिड and this one is your hexamethylene diamine. When adipic acid and hexamethylene diamine, it is heated at about 553 Kelvin and high pressure. देखो कितने टेम्परेचर पर अपन उसको हीट कर रहे हैं? It is heated at about 553 Kelvin and high pressure. First it form a salt. क्या बनाएगा यहाँ पर? ये पहले नायलॉन सॉल्ट, और वो नायलॉन सॉल्ट का पॉलीमराइजेशन होता है. अब नायलॉन सॉल्ट बनेगा कैसा? नाउ सी हियर दैट OH कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH, इट इज प्रोटॉन डोनर. कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग एसिड अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड वो क्या करेगा? प्रोटॉन H प्लस आयन देगा. एंड NH2 ये क्या करेंगे आप लोगों का? NH2 विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन बिकॉज इट इज अ बेस. एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है कि एनी बेस विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड एसिड विल डोनेट द प्रोटॉन. सो ये जो हाइड्रोजन एटम्स है फ्रॉम OH, दिस हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर टुवर्ड्स द NH2. नाउ दिस इज योर NH2 and this H it will form NH3. देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका. Now see here what you will get here. Now C double bond O, this one is your OH CH2 4 times. Okay, CH2 4 times C double bond O minus. क्योंकि OH के पास का H चले गया तो O माइनस, उसके बाद में ये हो जाएगा आप लोगों का NH3. नाउ दिस NH2 विल कन्वर्ट इनटू NH3 क्योंकि OH का H वहां जा रहा है. नाइट्रोजन विल एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, देन रिमेनिंग पार्ट विल एज इट इज. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ये जो इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट को अपन बोलते हैं नायलॉन सॉल्ट.
दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज अ नायलॉन सॉल्ट। और उसके बाद जैसे ये नायलॉन सॉल्ट को आप हीट करेंगे, इसमें से n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है इसमें से? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसा रिमूव होगा? नाउ दिस OH, see here, this O and from here 2H, NH2 के पास के कितने H जाएंगे? 2, क्या रिमूव कर दूंगा मैं? H2O। नाउ दिस NH3 विल कन्वर्ट इनटू NH। आपका प्रोडक्ट, अगर मैं लास्ट प्रोडक्ट देखूंगा तो देखो मेरा क्या आएगा? OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 times, then C डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन वाटर के पास चले गए, यहां से 2 हाइड्रोजन गए, सो दैट NH3 विल कन्वर्ट इनटू NH, देन CH2 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा आप लोगों का NH3, एंड दिस इज NH2, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर नायलॉन 6,6। इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? नायलॉन 6,6। अब एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिखते। अब जब मैं नायलॉन 6,6 लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? यहां से OH रिमूव कर दूंगा। वाई? बिकॉज एथिलीन जो आपका है हेक्सामेथिलीन डायअमाइन, वो यूनिट इधर भी रहेगा ना, तो यहां से भी वाटर OH और NH2 का H वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहां से एक H रिमूव होगा। नाउ दिस इज अ मेथड टू राइट द नायलॉन 6। ये NH2 क्यों NH में कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज ये NH2 का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH क्या रिमूव कर दिया अपन ने? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है कि नहीं? क्या रिमूव कर रहा हूं मैं यहां पर? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कुछ तो भी मैं रिमूव कर रहा हूं, एडिशन में कुछ रिमूव नहीं होता है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे अपन, दैट इज योर पॉलीईस्टर। जल्दी से नोट डाउन करो, टेक स्क्रीनशॉट, पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। Okay, very good. Now come to the next condensation polymer is your polyester. अब polyamide मतलब which contain amide linkage, and polyester मतलब which contain ester linkage. कौन सा linkage रहता है उसमें? which contain ester linkage, that is called as your polyester. So condensation का second example अपन start करेंगे polyester which contain ईस्टर लिंकेज। और ईस्टर लिंकेज बनता कैसे आप लोगों को पता है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा? अल्कोहल से ये ईस्टर बनाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। वो प्रोसेस को मैं कौन सा प्रोसेस बोलूंगा? ईस्टरिफिकेशन। नाउ द एग्जांपल ऑफ पॉलीईस्टर इज टेरिलीन। See here, what is the example of polyester which contain ester linkage? टेरिलीन। नाउ दिस टेरिलीन, ये पॉलीस्टर का एग्जाम्पल है। अब अगर टेरिलीन मैं देखूंगा, सो दिस टेरिलीन इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन। ये टेरिलीन का दूसरा नाम क्या आ जाता है आप लोगों का? डेक्रॉन, DACRON। इट इज अ डेक्रॉन। टू प्रिपेयर टेरिलीन पॉलीस्टर फाइबर द मोनोमर यूज्ड इज। अब यहां अपन कौन से मोनोमर यूज करेंगे इसकी लिस्ट बना लो। पॉलीथीन के लिए कौन सा मोनोमर आएगा? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर, PVC का मोनोमर, ओके। नाउ टेफ्लॉन का मोनोमर, नायलॉन 6,6 का मोनोमर। अब व्हाट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6,6 वो बता रहा हूं मैं, बिकॉज बोथ मोनोमर्स कंटेनिंग 6 and 6 कार्बन। एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, देन योर हेक्सामेथिलीन डायअमाइन आल्सो कंटेनिंग 6 कार्बन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6,6। दो वहां पर मेरे पास मोनोमर है और दोनों में 6 कार्बन एटम है। नाउ द मोनोमर फॉर टेरिलीन। अब अगर मैं टेरिलीन पॉलीस्टर का एग्जांपल है, टेरिलीन के मैं मोनोमर देखूंगा फॉर टेरिलीन द मोनोमर्स आर एथिलीन ग्लाइकॉल। सी है विच मोनोमर इज यूज्ड, कौन सा मोनोमर यूज करते हैं अपन? एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब 1,2-डायऑल, 2 अल्कोहल लेंगे, 1,2-डायऑल प्लस DMT, डायमेथिल
terephthalate. What is full form of DMT? Dimethyl terephthalate. अब dimethyl terephthalate का स्ट्रक्चर क्या आता है पता है? Now see, this one is your benzoic acid. अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका benzoic acid है. ओके, नाउ दिस वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड. मैं क्या करता, पैरा पोजिशन पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच करता. नाउ दिस इज कॉल्ड एज पीएच साइलेंट रहता है यहाँ पर. पैथेलिक एसिड नहीं बोलते इसको, पीएच साइलेंट रहता है. इट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. ये क्या हो गया आप लोगों का? थैलिक एसिड. तो स्टूडेंट थैलिक एसिड बना सकते हैं. व्हाट इज थैलिक एसिड? कैसा आएगा थैलिक एसिड? बेंजीन रिंग. ओके, एंड पैरा टू ईच अदर अपन क्या अटैच करेंगे? टू कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. अब मुझे डाइमेथिल थैलिक एसिड बनाने का रहा. फॉर डाइमेथिल थैलिक एसिड द H of OH it is replaced by CH3. H of OH it is replaced by CH3. Now this is your dimethyl and remaining part is terephthalate. ओके, तो मैं क्या करूंगा यहां पर? H is replaced by CH3. H is replaced by CH3 and that is called as your dimethyl terephthalate. क्या बोलेंगे अपन इसको? dimethyl terephthalate. And this dimethyl terephthalate is the monomer used to prepare terylene, which is the example of polyester which contain ester linkage. Now see, I am going to write the reaction. अब मैं इसका reaction लिखता हूँ. While writing the reaction, see this one is my dimethyl terephthalate, OCH3, C double bond O, then benzene ring from thalic acid. Okay, then C double bond O, OCH3. Now this one is your DMT, dimethyl terephthalate. Now this dimethyl terephthalate, it react with ethylene glycol. Now your ethylene glycol is CH2OH. See here, CH2OH, single bond CH2OH. Now this is called as your ethylene glycol and this part is your dimethyl terephthalate. And when it is heated at about 420 Kelvin, देखो कितने टेम्परेचर पर उसको मैं हीट कर रहा हूँ, 420 Kelvin to 460 Kelvin in presence of zinc acetate. Now here the catalyst used is, which catalyst we are using here? Zinc acetate antimony triacetate. Zinc acetate antimony trioxide used as a catalyst. Now in this reaction, see here OCH3. In this reaction OCH3, or we can say in this reaction CH3 and OH. क्या रिमूव हो जा रहा है यहाँ पर? CH3OH, that is methanol. Yes, what we are going to eliminate from here? क्या eliminate कर रहा हूँ मैं यहाँ से? CH3OH, we are eliminating methanol. Now the same reaction I am writing, see here, same reaction को मैं कौन से फॉर्म में लिखता? देखो इधर. Now this one is your dimethyl terephthalate. Okay, dimethyl terephthalate plus ethylene glycol. Now this one is your ethylene glycol, OH CH2OH plus CH3O, C double bond O, attach their benzene ring. Okay, C double bond O, OCH3. Now सिर्फ मैंने पोजीशन शिफ्ट किया, एथिलीन ग्लाइकॉल को लेफ्ट में लिया एंड DMT को कहाँ लेके गया? राइट में. एंड व्हेन दिस इज हीटेड एट अबाउट 420 to 460 Kelvin in presence of zinc acetate. Okay, zinc acetate antimony trioxide. Okay, antimony trioxide used as a catalyst. काय का रोल प्ले करता है ये? Used as a catalyst. अब देखो ये रिएक्शन में क्या होगा? H from ethylene glycol and OCH3 अपन क्या एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से? Yes, what we are going to eliminate? क्या एलिमिनेट कर रहा हूं मैं यहां से? methanol. That is your CH3 single bond
OH. अब ये मिथेनॉल एलिमिनेट हुआ है. नाउ वी आर यूजिंग हियर n नंबर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड n नंबर ऑफ टेरिफथ्लेट. अब जैसे यहां से इथेनॉल एलिमिनेट होगा ये H भी एलिमिनेट कर देने का. नाउ दिस H एंड ये OCH3 ये भी एलिमिनेट कर देने का. एग्री. CH3OH. आप लोगों का प्रोडक्ट देखो क्या आएगा. नाउ योर प्रोडक्ट विल बी CH2 then O आया ये ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विल डायरेक्टली फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बोनिल कार्बन. अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे बॉन्ड बनाएगा? कार्बोनिल कार्बन. देन अटैच देयर बेंजीन रिंग. ओके. देन C डबल बॉन्ड O and at the bottom write there N and this linkage is called as, ये linkage को बोलते हैं ester linkage. This linkage is called as the ester linkage and this is your polyester and that is name is pteryline या it is called as Dacron. देखो क्या किया मैंने यहाँ से. Now this H OCH3 रिमूव कर दिए. Now this H OCH3 मीन्स अपने क्या रिमूव किए यहाँ से? मिथेनॉल एंड रिमेनिंग प्रोडक्ट इज योर टेरिलीन. पॉलीइस्टर टेरिलीन और इट इज कॉल्ड एज अ डेक्रॉन. वो आपको क्वेश्चन पूछता है नायलॉन 6 कंटेन विच लिंकेज. नायलॉन 6 कंटेन विच लिंकेज. नायलॉन 6 में या नायलॉन 6 में कौन सा लिंकेज रहता है? अमाइड लिंकेज. इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड फाइबर या पॉलीअमाइड पॉलीमर. नाउ टेरिलीन डेक्रॉन इट कंटेन विच लिंकेज? दैट इज योर ईस्टर लिंकेज. इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीस्टर एंड पॉलीस्टर्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन पॉलीस्टर को? टेरिलीन. सो दिस इज ऑल अबाउट addition polymerization and condensation polymerization. Within 5 minutes let me finish what is ring opening polymerization. तो अपना एक मेजर क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है. Now this is your classification based on mode of MOD, mode of polymerization. So on the basis of mode of polymerization there are 3 types of polymerization: addition polymerization, condensation polymerization and last one is your ring opening polymerization. वो भी मैं आपको बताता हूं. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट. जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं स्टार्ट करता हूं. लास्ट 5 मिनट्स दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. नाउ सी हियर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन दैट इज नायलॉन 6. और हर पॉलीमर के मोनोमर्स याद रखो फॉर योर इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर स्टेट बोर्ड. ट्राई टू रिमेंबर द मोनोमर यूज्ड. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ रिंग ओपनिंग थर्ड पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का थर्ड पार्ट है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन थर्ड एंड टुडेज वीडियो लेक्चर लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज के वीडियो लेक्चर का. रिंग ओपनिंग पॉलीमराइज. अब उसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज अ साइक्लिक. जो मेरा मोनोमर रहेगा डेफिनेटली मेरा मोनोमर क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा. क्यों अपन रिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा मोनोमर क्या रहेगा यहाँ पर? साइक्लिक इन द फॉर्म ऑफ रिंग. उसको मैं ओपन करूंगा. दैट इज योर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. हियर द मोनोमर्स यूज आर एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. जनरली रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में कौन से मोनोमर यूज करते हैं? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. कैप्रोलैक्टम का मतलब रहता है साइक्लिक अमाइड. कैप्रोलैक्टम किसको बोलते हैं? नोट डाउन दिस पॉइंट. कैप्रोलैक्टम मैं किसको बोलूंगा? साइक्लिक अमाइड. साइक्लिक अमाइड आर कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम. वैसे आप लोग यूज करते हैं लैक्टोन, कैप्रोलैक्टोन. नाउ लैक्टोन का मतलब रहता है साइक्लिक कीटोन. यस, लैक्टोन क्या हो जाता है आप लोगों का? साइक्लिक कीटोन. कभी कभार साइक्लिक ईथर भी यूज करते हैं इन केस ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में विच मोनोमर्स आर यूज? कैप्रोलैक्टम,
lactone, cyclic ether. Caprolactam is the cyclic amide, lactone is the cyclic ketone, and cyclic ether, these are the monomer used in case of ring opening polymerization. करने का स्टार्ट. होप यू आर रिटर्न दिस पार्ट. जल्दी इसको नोट डाउन करो. अब देखो मेरा एग्जाम्पल है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में, दैट इज नायलॉन 6. अब नायलॉन कंटेनिंग मोनोमर कंटेनिंग 6 कार्बन, ये नायलॉन 6 के मोनोमर में कितने कार्बन आइटम्स रहेंगे? 6. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6 एंड द मोनोमर यूज इज. अब आपके नायलॉन 6 के लिए जो मोनोमर यूज करते हैं वो रहता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. यस, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम मीन्स इट इज अ साइक्लिक अमाइड. देखो मैं साइक्लिक अमाइड का स्ट्रक्चर लिखता हूं. नाउ अमाइड मतलब C डबल बॉन्ड और NH लिंकेज. सी दिस वन इज योर साइक्लिक अमाइड, C double bond O NH. Now this one is your amide. अब cyclic amide both here attach CH2 group. ओके कितने कार्बन हो गए? 1 2 3. मुझे 6 कार्बन आना चाहिए. अगेन CH2 हो गए 5 कार्बन एंड दिस वन इज योर लास्ट कार्बन. नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर कैप्रोलैक्टम. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. कार्बन आइटम्स काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. Now nylon 6. Now this monomer is used to prepare the nylon 6, and when epsilon caprolactam, it is heated at about 533 Kelvin to 5. सी है ना कि कितने टेम्परेचर पर इसको मैं हीट कर रहा हूं? 533 केल्विन टू 543 केल्विन. अब जैसे आप लोग इतने टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे द बॉन्ड विल ब्रेक हियर. यहां पर रिंग ओपन हो जाता है. अब ये साइक्लिक रिंग है लाइक दिस, ये रिंग स्ट्रेट हो जाता है. दो नाउ इट इज अ साइक्लिक रिंग. ये मेरा कार्बोनिल कार्बन हो गया. दिस वन इज नाइट्रोजन, ये स्ट्रेट हो जाएगा. जैसे रिंग ओपन होगा सी माय प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड O. मैंने ये C डबल बॉन्ड O को उठा के एकदम लेफ्ट में लेके चले गए. नाउ C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. कितने CH2 ग्रुप है? 1 2 3 4 5. सो राइट हियर CH2 5 टाइम्स और फिर ये CH2 को अटैच्ड है NH. नाउ दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज, ये कौन सा पॉलीमर हो गया आप लोगों का? नायलॉन 6. विच पॉलीमर इज देयर? नायलॉन 6 एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या का एग्जाम्पल हो गया? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. तो एक्चुअली पॉलीमर इट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. पहला उसका क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक. दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसमें, एडिशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है या रिंग ओपनिंग हो रही है. तो बेस्ड ऑन दिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. वन इज योर एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज योर रिंग ओपनिंग. थर्ड क्लासिफिकेशन रहता है उसका बेस्ड ऑन मोनोमर यूज्ड. बेस्ड ऑन मोनोमर यूज मतलब एक ही टाइप के मोनोमर आप लोग यूज कर रहे हैं या अलग अलग मोनोमर यूज कर रहे हैं. जैसे मैंने यहां एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया कैप्रोलैक्टम, लेकिन अगर मैं नायलॉन 6 की बात करूंगा, नायलॉन 6 में कौन सा मोनोमर अपन यूज करते हैं? नायलॉन 6 एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन. different types of monomers are there. एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन. मैं टेरिलीन बना रहा हूं, पॉलीस्टर. What are the monomer used in टेरिलीन? डायमेथिल टेरिफ्थिलेट, एथिलीन ग्लाइकॉल. तो अगर आप लोग एक टाइप का मोनोमर यूज कर रहे हैं दैट इज होमोपॉलीमर. होमो मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट्स आर देयर. अ पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड बाय सेम काइंड, सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स मतलब मोनोमर. एक ही टाइप के उसमें मोनोमर्स रहेंगे, दैट इज होमोपॉलीमर. एंड इफ polymer which is obtained by different types of monomers, different types of repeating units, that is called as copolymer. Now the example of homopolymer and copolymer in my next video lecture we will try to cover, that is degradable and biodegradable polymers. Definitely we will try to cover. Hope
टुडेज लेक्चर आपको समझ में आया होगा. पॉज एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी कंसेप्ट. थैंक यू.